कदम उठाएगा। मैं यह भी बताता हूं कि श्रमिकों की सहायता करने के लिए मंत्रालय ने एक नेशनल हेल्पलाइन भी तैयार की है, जिसका नंबर 14434 है। ई श्रम पोर्टल में मनोज, श्री मंत्री महोदय को नमस्कार। सर, मैं अजमेर से टेम्पो चलाता हूँ और सर मेरे को किसी ने बताया मेरे मित्र ने कार्ड बनवाइए, कार्ड बनवाया गया। आधे घंटे में मेरा कार्ड बन गया। मैं पासबुक, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ले गया सर। आधे घंटे में मेरा कार्ड बन गया और मेरे को आने वाली केंद्र की और राजस्थान सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना आएंगी मेरे खाते में आएंगी, सीधे मैं आपका तय देते हुए धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आइए अब डिब्रूगढ़ के सीएससी सेंटर আমি যদি এটা এনেধৰণৰ মিটিং কৰিম যে আপোনালোক উপস্থিত থাকিব, বিতংভাৱে জনোৱা হ'ব। भाषा के अवरोध को दूर करने के लिए माननीय मंत्री जी की बात श्रमिकों को एवं श्रमिकों की बात माननीय मंत्री जी को ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो चलिए चेन्नई चलते हैं। आदरणीय मंत्री महोदय जी को मेरा प्रणाम। मैं पीएल राजेंद्रन, श्रम कल्याण आयुक्त तमिलनाडु व पुडुचेरी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज हमारे जो सीएससी केंद्र में जो है करीब 10 से 12 लाभार्थी जो है पंजीकृत कर चुके हैं और वो अपनी पंजीकरण की जो लाभ इनसे जो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इनको जो लाभ लेने जा रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। यहाँ भाषा की थोड़ी दिक्कत है सर, भाषा वो तमिल भी बोलेंगे। पूरे विचार यहाँ पे जितने भी मतलब लाभार्थी बैठे हैं वो सभी तमिल से ही मतलब उनका विचार विमर्श कर सकते हैं। हिंदी तो उनकी बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये एक तरफ से अपनी अपनी विचार पहले व्यक्त करेंगे। मैं इनका सारांश जो है मंत्री महोदय जी को जो है हिंदी में अनुवाद करूंगा सर। तो पहले लाभार्थी हमारे सामने जो बैठी हैं कुमारी मेघला बैठी हैं, ये पेशे से जो है टेलरिंग का काम करती है सर और ये मंत्री महोदय जी को जो है अपना विचार विमर्श जो है तमिल में व्यक्त करेगी, उसको मैं कंसोलिडेट करके आपको हिंदी में अनुवाद करूंगा सर। வணக்கம் சார், ஈஸ்வரம்ன்றது விதத்தை வந்து நாங்க பொது சேவை இ சேவை மையத்துல தான் நாங்க போய் பார்த்தோம். அந்த பார்த்ததுல பாத்தீங்கன்னா அந்த கார்டு வந்து எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல் அப்படின்றத சொன்னாங்க. சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் ஆதார் கார்டு பேங்க்கும் எடுத்து வர சொன்னாங்க இந்த கார்டு அப்ளை பண்றதுக்காக. இந்த கார்டு நாங்க அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி இதுல என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாங்க கேட்டப்ப இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மாதிரி 2 lakhs இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க டெத்துக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஊனமாயிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மாதிரி 2 lakhs தருவாங்க அண்ட் 1 lakh தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சார். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா டைம்ஸ் நிறைய பேர் வேலை வாய்ப்பு இல்லாம நிறைய பேர் திண்டாடிட்டு இருந்தாங்க. அந்த டைம்ல தான் இந்த கார்டு நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல் சொன்னாங்க. வேலை வாய்ப்பு இருக்கிறதுக்கு இந்த கார்டு நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல் சொல்லியிருந்தாங்க சார். அதே மாதிரி நம்ம எந்த நாட்டுக்கு நம்ம போனாலும் இந்த கார்டு மூலியமா நம்ம ரேஷன் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் நம்மளுக்கு சொன்னாங்க சார். ஸோ இந்த கார்டு பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கார்டா தான் எங்களுக்கு இருக்கு. இது மூலியமா நாங்க நிறைய பலன் அடைவோம் அப்படின்றது நாங்க நம்புறோம் சார்। महोदय जी, अभी आपके सामने जो है एक ऑटो चालक बैठे हैं जिनका नाम जो है रवि कुमार जी है, वो आपसे संवाद करेंगे। சிஎஸ்சி அந்த இதில் மூலியமா பார்த்துட்டு வந்துட்டு நாங்க இதை வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம். இதனால நல்ல பயன் இருக்கு. ஆக்சுவலா இதனால நல்ல பயன் இருக்கு. இதுல இன்சூரன்ஸ் மூலியமா இந்த மாதிரி 2 lakh அந்த மாதிரி கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. எங்களால வருவாய் எதுவுமே இல்லாம இருந்தது. இதனால நல்ல யூஸ்ஃபுல் இருக்கும். ஆக்சுவலா எங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லை. இதுக்கு கட்டணம் வரி எதுவுமே வாங்கல, சேவைகள் காசு எதுவுமே வாங்கவே இல்லை. ஆக்சுவலா கலைகளா இருக்கு, அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. இதோட இது வந்து இன்னும் நல்லா கவலை எல்லாருக்கும் போகணும். ஆக்சுவலா இது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலியமா எல்லாருக்கும் நான் சொல்லுவோம். ஆக்சுவலா இது நல்லா இருக்கு, எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை। महोदय जी, अभी आपके सामने जो है श्री आनंद जी अपना विचार व्यक्त करिए। ஐயா வணக்கம், தொழில்துறை அமைச்சருக்கு முதல்ல தெரிவிச்சிட்டோம். இந்த கார்டு மூலயமா ஆன்லைன் குரூப் தான் பார்த்தேன் நான். இந்த கார்டை இந்த மாதிரி
மாதிரி பண்ணாங்க. வந்து விசாரிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த சென்டர்ல வந்து விசாரிச்சதுக்கு அப்புறம் இது மாதிரி பெனிஃபிட் இருக்கு, 2 லட்சம் பெனிஃபிட் இருக்கு, தொழில் செய்யலாம், எந்த தொழில் வேணாலும் செய்து தொழில் மெக்கானிக்கா இருக்க அந்த தொழில் வந்து ஆக்சுவலி லோன் நான் உடனே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி விபத்து ஏற்பாட்டாலும் பாதிப்புக்கு அந்த மாதிரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பணம் கிடைக்கும், லோன் கிடைக்கும். கொரோனா காலம் எல்லாருக்குமே வேலை இல்லை பத்திக்கு, அதான் இன்சூரன்ஸ் 2 லட்சம் அது மூலியமா நீங்க பணத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நம்புறேன். நன்றி. महोदय जी, मैं अभी जो यहाँ के लाभार्थी जितने भी आपके सामने जो विचार रखे थे तमिल भाषा में रखे थे उनका अनुवाद मैं संक्षिप्त में जो है हिंदी में आपको बताना चाहता हूँ। इनका कहना है कि ये जो इनको जो इंफॉर्मेशन जो रजिस्ट्रेशन के बारे में मिला है वो सीएससी सेंटर के द्वारा मिला है। सभी ट्रेड यूनियंस ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया था। इस बैठक में सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के प्रतिनिधियों ने राष्ट्र के निर्माताओं यानी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उठाए गए इस कदम को अपना पूरा सहयोग एवं सरकार के साथ परस्पर कार्य करने का विश्वास भी दिलाया है। इसी क्रम में बहुत से श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों ने वाराणसी का सीएससी भी हमारे साथ कनेक्टेड है। वाराणसी में कनेक्ट करवाएं प्लीज। नमस्कार मैडम जी, नमस्कार। हम यहाँ पे अपने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कुछ के साथ बैठे हुए हैं, जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रही हैं। और इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है और इनका जो कि अनुभव है अगर आप बात करना चाहें तो मैं बात करा सकता हूँ। और इनको हमने बताया कि आगामी आने वाले सभी भी सरकार की योजनाओं में इस श्रम कार्ड के माध्यम से जो है सरकार की सभी योजनाओं में जो है कि इनको लाभान्वित किया जाएगा। और इनिशियल में जो इनको 2 लाख का जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो रहा है उससे इनको तत्काल प्रभाव से फायदा मिल रहा है, जिससे ये काफी खुश है। और सरकार को ऐसी योजनाओं के लिए हमारे श्रमिक भाई जो है आभार व्यक्त कर रहे हैं और हम भी जो है कि इसके लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं और बहुत ही उत्साह है हमको ये कार्य करने में। भारत सरकार ने जिस हिसाब से असंगठित कामगारों के बारे में सोचा है उनका डेटाबेस तैयार करने के लिए और आने वाले समय में जो भी योजनाएं लाएंगी उसका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा मैं बता रही थी कि हमारे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने सिर्फ ये आश्वासन नहीं दिया है बल्कि मंत्री जी को ये विश्वास भी दिलाया है कि वो सरकार के साथ मिलकर इस पंजीकरण के कार्य को आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें पंजीकृत करवाएंगे। इसी क्रम में हमने अपने असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भाई बहनों के ऊपर एक फिल्म बनाई है, शॉर्ट फिल्म है ये। हम वो फिल्म पहले देखते हैं। करोड़ से ज्यादा असंगठित कामगार हैं, जो देश के कुल रोजगार का 90% से अधिक है। क्या प्रगति की दौड़ में इनका पीछे रह जाना उचित है? क्या संगठित क्षेत्र की तरह इनके पास भी समान अधिकार नहीं होने चाहिए? कभी इन्हें भी मुख्य धारा में आने का अवसर मिलेगा? देश के लगभग 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज श्रमिक वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए श्रम व रोजगार मंत्रालय ने आजादी के बाद पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नेशनल डाटाबेस तैयार करने का बड़ा फैसला किया है, जिसको ई श्रम पोर्टल का नाम दिया गया है। स्वतंत्रता के 7 दशकों बाद एक नई पहल करते हुए श्रम मंत्रालय ने शुरू किया नेशनल ई श्रम पोर्टल, जो एक सेतु बनकर असंगठित कामगारों को नई संभावनाओं और सुखद भविष्य से जोड़ेगा। ई श्रम पोर्टल पर कामगार अपने आधार, मोबाइल और बैंक खाते के साथ खुद ही अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
फोन ना हो तो वो नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकृत कामगारों को एक डिजिटल ई श्रम कार्ड मिलेगा। कार्ड पर लिखा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर संपूर्ण भारत में वैध होगा, यानी इससे उन्हें किसी भी राज्य में अपने कौशल के अनुकूल रोजगार पाने में मदद मिलेगी। यही नहीं, इसके माध्यम से कामगारों को सामाजिक सुरक्षा संबंधित योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा वे इस पोर्टल पर ऑनलाइन निवेदन और शिकायतें भी दर्ज करवा सकते हैं। उनके सहयोग हेतु 24 घंटे की राष्ट्रीय हेल्प डेस्क की सुविधा भी मौजूद है। कुल मिलाकर ये पोर्टल असंगठित कामगारों को एक सूत्र में बांधकर उन्हें पहले से अधिक स्वावलंबी बनाएगा। उन्हें बेहतर जीवन शैली और समान अवसर प्रदान करेगा, जिससे वे खुद को, अपने परिवार को और इस देश को सुनहरे भविष्य की ओर ले जा सके। ई श्रम से जुड़े, आगे बढ़े। अभी रजिस्टर करें e-shram.gov.in। हमारे राष्ट्र के निर्माताओं के लिए उठाए गए इस कदम पर सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने अपने विचार, अपने मैसेजेस हमारे साथ शेयर किए हैं। बहुत सारे मैसेजेस हम लोगों को मिले हैं, उनके कुछ अंश हम यहाँ आप सभी के साथ साझा करते हैं। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। सभी श्रमिक भाइयों बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। देश के लगभग 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड श्रमिक वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण से कोई भी कामगार भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी योजनाओं का फायदा लेने से वंचित नहीं रहेंगे। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को एक डिजिटल ई श्रम कार्ड मिलेगा। ई श्रम कार्ड पर लिखा UAN देश के सभी राज्यों में वैलिड होगा। हमारे देश में असंगठित जो मजदूर हैं, उनकी संख्या संगठित मजदूरों से बहुत अधिक है। इनकी संख्या अधिक होते हुए भी इनका ब्यौरा है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। पिछले 3 सालों से ई श्रम पोर्टल पर काम चल रहा है, लेकिन इसकी महत्ता तब जानी जब हमारे देश में कोविड-19 का आगमन हुआ। इसमें देश के असंगठित वर्ग के कामगारों को सरकार की स्कीम्स का फायदा देना है तो किसको दें। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे यहाँ पे ये कामगार हैं करोड़ों, उनके सामने ई पोर्टल सामने आ गया है। हम ये पोर्टल का रजिस्ट्रेशन और इस पोर्टल के थ्रू जो भी उनको सुविधाएं मिलेंगी वो पहुंचाएंगे। किसी भी कामगार को अपने घर से बहुत दूर नहीं जाना है पंजीकरण कराने के लिए। उसको 1 या 2 किलोमीटर के अंतर्गत उसको एक कॉमन सर्विस सेंटर ये सारी सुविधाओं को पाने के लिए मिल जाएगा। हमारे पास देश में तकरीबन 3 लाख से ऊपर CSC सेंटर्स हैं। उन सबको इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमने इन्वॉल्व किया है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और वो इसीलिए कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। खुद ब खुद अपने आप या अपने ही किसी मजदूर भाई बहन से भी लेके ही पूरा अपने योजना के बारे में जानकारी मिलेगी और जो सही में लाभ है वो लाभ वो ले पाएगा। इस ई पोर्टल के जरिए से गवर्नमेंट 100% कवरेज देते हुए रजिस्ट्रेशन करेगी तो हमारे देश के वर्कर्स को बेनिफिट ही होगा। देश के कामगार को अगर उसका जो कानूनी हक है उसको ईमानदारी से मिले, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा बेहतर काम नहीं हो सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसके जरिए जो तमाम माइग्रेंट वर्कर्स हैं और जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर इसमें शामिल होंगे और वो स्कीम हम जो भी बेनिफिट्स पहुंचाना चाहते हैं वो एक मैकेनिज्म के तहत पहुंचाए जा सकते हैं। नेशनल डेटाबेस में उनका नाम सम्मिलित होने से उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और उनकी दीन दशा सुधरेगी। और सबसे बड़ी चीज जो उनका राइट है संविधान में कि एक अच्छा जीवन उनको प्राप्त हो सके वो मिल सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश के असंगठित कामगार इस पोर्टल पर बहुत जल्दी आएंगे और इन सुविधाओं का लाभ लेंगे। इस देश का असंगठित मजदूर जिस दिन खड़ा हो गया, जिस दिन हंसने लगा, जिस दिन मुस्कुराने लगा, वो देश पूरा मुस्कुराने लगेगा, हंसने लगेगा और दौड़ने लगेगा। ई
श्रम पोर्टल के द्वारा हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको एक पहचान मिलेगी। तो मेरा इस देश के असंगठित मजदूरों से ये आह्वान है कि आप इस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करें। तो आइए हम सब भारत सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का स्वागत करें। तो आइए ई श्रम से जुड़े, आगे बढ़े और भारत सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का स्वागत करें एवं जल्दी से जल्दी पंजीकरण को पूर्ण करने में सरकार का सहयोग करें। जय हिंद। माननीय केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार श्री भूपेंद्र यादव जी, सर आपने जब से मंत्री पद का कार्यभार संभाला है तभी से मंत्रालय को आपका निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। कार्य के प्रति आपकी कर्मठता हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। आपके नेतृत्व में बहुत ही कम समय में जिस त्वरित गति से मंत्रालय के विषय आगे बढ़े हैं, उसे देखते हुए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आपके नेतृत्व में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नए आयाम तय करेगा और देश के निर्माताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाकर श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सम्माननीय केंद्रीय मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप अपने उद्बोधन द्वारा इस पोर्टल की सफलता के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी। ई श्रम पोर्टल के आज सार्वजनिक शुभारंभ पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री भाई रामेश्वर तेली जी, हमारे विभाग के सचिव श्री अपूर्व चंद जी, विभाग की विशेष सचिव श्रीमती अनुराधा जी, आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी राज्यों के हमारे मंत्रीगण, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए देश के सभी ट्रेड यूनियन के नेतागण, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे श्रम मंत्रालय परिवार के सभी अधिकारीगण और हमारे NIC UIDAI के सभी अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं, आज ये एक शुरुआत है और वास्तव में ये शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए है। देश के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण करते समय उन्होंने जो सबसे पहले वाक्य कहे थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है और हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि जो देश के विकास का लाभ है वो समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को मिले। ये सच है कि संसद के अंदर विभिन्न समय से इस बात की मांग की जाती रही थी कि देश में जो सबसे बड़ा कामगार वर्ग है, असंगठित क्षेत्र है, उसमें एक डाटा बने। पार्लियामेंट में भी पहले अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी से लेकर काफी सारे सांसदों ने इस पर अपने विचार रखे। 2014 में जब सरकार आई तो एक सचिव स्तर की कमेटी का भी गठन किया गया और 2016-17 में सरकार ने अपनी बजट स्पीच में भी इस विषय को रखा कि असंगठित क्षेत्र में हमें एक डाटा का मैकेनिज्म करना होगा और इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया चली। मैं मेरे विभाग के पूर्ववर्ती सभी मंत्रियों को, सभी अधिकारियों को और पूरे विभाग की टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने लंबे समय से चले हुए प्रोजेक्ट को आज पूरा करके देश की जनता को समर्पित किया है। निश्चित रूप से हम सबके प्रेरणादायी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमारे विभाग की ओर से एक बहुत बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि इसके लिए उपलब्ध जो प्रारंभिक साधन थे 704 करोड़ रुपए वो केंद्र सरकार के द्वारा विभाग को उपलब्ध कराए गए। सभी प्रकार की टेक्निकल असिस्टेंस भी हमें NIC के अधिकारियों के द्वारा, हमें UIDAI के अधिकारियों के द्वारा और हमारे विभाग के अधिकारियों के अथक परिश्रम के द्वारा किए गए। मैं ये मानता हूँ कि देश के श्रम क्षेत्र में काम कर रहे हमारे जितने भी मजदूर संगठन हैं, उनके साथ जब इस विषय को लेकर के हमने बैठक करी तो हमारे सारे मजदूर संगठन, चाहे हमारे BMS हो, हमारे इंटक हो, C2 हो, एटक हो, TUCC हो, जितने भी फेडरेशन हैं, सभी लोगों से हम लोगों ने सुझाव लिए और मैं ये मानता हूँ एक व्यापक विचार विमर्श के आधार पे, एक सहमति के आधार पे, एक परस्पर संकल्प के आधार पे सब ने एक संवित
स्वर में ये कहा कि ये जो पहल है इसको सब लोगों ने बड़े हृदय के साथ स्वीकार किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज इन सब प्रयासों के कारण जो हम कहते हैं कि जिनकी मेहनत देश का आधार है, उनका आज सपना हुआ साकार। हमारे श्रमिक क्षेत्र में, जो असंगठित क्षेत्र में हमारे भाई बहन काम करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते समय, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते समय विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न तरीके से इसका पंजीकरण कराया जाता है। ये सच है कि हमारे केंद्रीय सरकार के द्वारा बीड़ी मजदूरों के लिए योजनाएं चलती हैं, या हमारे बिल्डिंग सेक्टर के लिए योजनाएं चलती हैं, अन्य योजनाएं चलती हैं। जब मैं हमारे श्रम संगठनों के लोगों के साथ बात कर रहा था तो उन्होंने एक विषय कहा कि क्या अब सब योजनाएं एक हो जाएंगी। मैंने कहा था कि ये जो पोर्टल है किसी भी स्कीम का विलय नहीं है, बल्कि स्कीम असंगठित क्षेत्र के हर मजदूर तक पहुंचे उसके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। हम एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो हमारे विभाग के सचिव साहब ने भी कहा, बाकी भी आपको सारे इसकी जानकारी में ध्यान में आया है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारा श्रमिक वर्ग काम करता है उनकी पहचान करना, उनका डाटाबेस, उनकी उपलब्धता, उनके लिए पॉलिसी का निर्माण, और जब कोरोना जैसी अगर कोई पेंडेमिक आए तो उसके लिए भी सरकार के पास एक आधारभूत डाटाबेस तैयार हो। ये सच है कि प्रारंभिक 1 साल के लिए हम लोगों ने इसमें एक्सीडेंट कवर की एक बीमा राशि को भी इसके द्वारा दिया गया है। और ये एक संकल्प जो आज से शुरू हुआ है, हम मानते हैं ये एक शुरुआत उस देश के उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए है जिसमें लास्ट माइल डिलीवरी जिसको हम कहते हैं, उन सारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए है। देश में श्रमिक कानूनों में एक बड़ा परिवर्तन हम लोग लेकर के आए हैं और सोशल सिक्योरिटी कोड के सेक्शन 111 से 114 तक एक बड़ा प्रावधान भी रखा गया है कि देश में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का एक डाटा उपलब्ध होना चाहिए। हमने इस बात का जरूर ध्यान रखा है कि इसको बनाते समय सरल रजिस्ट्रेशन की पद्धति हो। सरल रजिस्ट्रेशन की पद्धति का अर्थ है कि अगर एक मजदूर के मोबाइल से 4 लोगों का भी रजिस्ट्रेशन है तो उस संकल्पना को भी हमने साकार किया है। इतना ही नहीं, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो भी पड़ोस के जो हमारा सेंटर है, इंफॉर्मेशन सेंटर है, उसमें जाकर के अपने अंगूठे के माध्यम से भी इस पर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। रजिस्ट्रेशन का कार्ड प्राप्त करने के लिए उनको कहीं चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जैसे ही उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, डिजिटल माध्यम से उनको रजिस्ट्रेशन का कार्ड प्राप्त हो जाएगा। हम ये मानते हैं और हम इस बात को जानते भी हैं कि हमारे जो अप्रवासी मजदूर भाई बहन हैं वो लगातार क्षेत्र को बदलते रहते हैं। ये प्रश्न भी स्वाभाविक आ सकता है कि जहां बार बार क्षेत्र को बदलेंगे तो उसके लिए भी भविष्य में हमारी एसएमएस के द्वारा एक व्यवस्था रहेगी। केवल उसको अगर वो एसएमएस को यस का क्लिक कर देंगे तो उनका बार बार पंजीकरण अपडेट होता रहेगा। इसके साथ ही इस बात की पूरी व्यवस्था की गई है कि ये विषय राज्य सरकारों के सहयोग से पूरी तरीके से श्रमिक क्षेत्रों तक पहुंचे। निश्चित रूप से हमारा लेबर डिपार्टमेंट के सभी नीचे तक के वेलफेयर अफसर, अधिकारी, हमारे ईएसआईसी, पीएफ जितने भी डिपार्टमेंट है उनके द्वारा तो इस श्रमिक योजनाओं का प्रचार किया ही जाएगा। हमारे विभाग के सचिव महोदय के द्वारा पिछले दिनों में लगातार राज्य सरकार के सचिवों के साथ भी पूरी बातचीत की गई और विभिन्न राज्यों को भी इसके लिए आवश्यक साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। हमारा मानना है कि श्रम कल्याण के लिए जो हमारा फेडरलिज्म है, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रूप में अंतिम रूप से कल्याणकारी राज्य की जो हमारी कल्पना है, उस कल्पना को पूरा करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार हम सब मिलकर के इस डाटाबेस को पूरा करना चाहेंगे। और मैं ये कहता हूं कि ये डाटाबेस वास्तव में हमारे जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उसके जीवन में परिवर्तन लाएगा। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा जो लगातार जिस प्रकार से सांख्यिकी विभाग के द्वारा देश के श्रमिकों का सर्वेक्षण किया जाता है, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट का जो अपना लेबर ब्यूरो है उसके द्वारा भी 3 नए सर्वे जारी किए गए हैं जो हमारे विभाग के अधिकारियों ने आज के समय की चुनौतियों के हिसाब से तैयार किए गए हैं। निश्चित रूप से माइग्रेंट लेबर की जो समस्या है इसके लिए एक व्यापक सर्वे होने की आवश्यकता है, उसको लेबर ब्यूरो के द्वारा किया गया है। दूसरा जो सर्वे है डोमेस्टिक वर्कर्स है उनको लेकर के तय किया गया, उसको प्रारंभ किया जाएगा। और तीसरा, हमारे देश में श्रमिकों की कार्य क्षमता को इंस्टीट्यूशन बेस पे पहचानने के लिए यह भी एक
नया सर्वे किया गया है। देश के कार्यबल को पहचानना, देश के कार्यबल को सरकार की नीतियों के अनुरूप उनका समायोजन करना, उनको डाटाबेस उपलब्ध कराना, सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना, ये ऐसे महत्वपूर्ण विधायी कार्य है जिसको इस समय भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। ये एक सर्व कल्याणकारी कार्य है। ये कार्य है जिससे देश के सभी असंगठित श्रमिकों को जुड़ने का हम आह्वान करते हैं। एक अनुमानित संख्या है कि देश में 38 करोड़ हमारे असंगठित क्षेत्र में श्रमिक काम करते हैं। इसके बारे में कुछ और भी अगर विषय हो सकते हैं तो इस जो डाटाबेस के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद ये विषय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये विषय आएगा। लेकिन इसको आगे जारी रखने के लिए राज्यों के स्तर पे भी एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया और उस मॉनिटरिंग कमेटी में भी श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को पूरी तरीके से रखा गया है। राज्य की मॉनिटरिंग कमेटी के बाद जिला स्तर पे भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटियों का गठन किया गया है ताकि जो हमारा डाटा है ये पूरा नीचे तक इसका जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो। आज के अवसर पर मैं पुनः बधाई देना चाहूंगा विशेष रूप से हमारे श्रम विभाग के सभी अधिकारियों को जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस पोर्टल पे कार्य को पूरा किया है। मैं बधाई भारत सरकार के NIC और UIDAI के अधिकारियों को भी देना चाहूंगा जिन्होंने श्रम विभाग के साथ मिलकर इसको एक साकार रूप प्रदान किया है। तकनीकी के क्षेत्र में उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल करी है श्रम विभाग के हमारे अधिकारियों के साथ इसकी जो व्यवहारिक समस्याएं आ सकती हैं, चुनौतियां आ सकती हैं, उसमें उन्होंने सभी प्रकार के समाधान दिए हैं। इसके साथ ही साथ एक टेली कॉल सेंटर का भी उपलब्धता कराई है और ये जो टेली कॉल सेंटर है अभी हिंदी और अंग्रेजी में है, लेकिन भविष्य में जो कि हमारे असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनके लिए क्षेत्रीय भाषाओं में भी हम ये टेलीकॉल सेंटर को हम आगे प्रसारित करेंगे। इसके साथ ही साथ NIC ने हमको ये भी आश्वस्त किया है कि ये जो भाषा हिंदी और अंग्रेजी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी ये वेबसाइट आएगी ताकि जो हमारे मजदूर भाई हैं वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकें। आज जब हम इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे थे, अजमेर से देख रहे थे, वाराणसी से देख रहे थे, हम चेन्नई से देख रहे थे, डिब्रूगढ़ से देख रहे थे, तो हमने प्राथमिक रूप से देखा चाहे बीडी वर्कर हो, प्राइवेट स्कूल में सफाई का काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, कोई टेम्पो ड्राइवर हो या कोई छोटे मोटे क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, हमारा ये मानना है और श्रम विभाग का भी ऐसा मानना है कि 400 से ज्यादा ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र हैं जिसमें हमारे सारे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हमारे भाई बहन काम करते हैं। भारत सरकार की एक बात की पूरी तरह प्रतिबद्धता है और हमारी प्रतिबद्धता देश के गरीब लोगों के कल्याण के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार ये सरकार पूरी तरीके से गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लास्ट माइल डिलीवरी पर दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए आज के ये कार्यक्रम की जो व्यवस्था है ये केवल कार्यक्रम की शुरुआत है। इसके साथ आगे चरणों में हम इसके सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पोर्टल केवल एक रजिस्ट्रेशन का पोर्टल नहीं है, ये हमारी उन सारे मजदूर भाई बहनों तक पहुंचने की एक प्रतिबद्धता है जिनको देश की सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलना चाहिए। ये उनको पहुंचने के का जहाँ एक और उनके लिए द्वार है वही हमारे लिए एक मिशन है। हम इस मिशन को पूरा करेंगे। इसमें मीडिया के भी सभी लोगों का हमें सहयोग मिले, योजनाओं का एक सकारात्मक रूप से प्रचार हो और आज देश का हमारा श्रम मंत्रालय, हमारे सारे मजदूर संगठन, सारे श्रमिक भाई बहन और सारी राज्य सरकारें मिलकर भारत सरकार के तकनीकी सहयोग से इस पोर्टल के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। पुनः मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, मंत्री होने के नाते सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि जो संकल्प आज इस पोर्टल के माध्यम से किया है हमारा विभाग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको पूरा करने में सामर्थ्यवान सिद्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री महोदय जी, आपके प्रेरणादायी वचनों के लिए आपका हृदय से आभार। हम आपके दिशा निर्देशों पे कार्य कर अवश्य ही सफलता को प्राप्त करेंगे। आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हमें निरंतर अथक परिश्रम करने एवं श्रमिकों के कल्याण के लिए नित नए कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। अब मैं निदेशक श्रम कल्याण श्री मनोज गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि आप धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्य का समापन करें।
माननीय केंद्रीय मंत्री जी, राज्य मंत्री जी, सचिव महोदय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय विशेष सचिव मैडम एवं यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। महोदय, आप लोगों के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन के कारण इस श्रम पोर्टल का लॉन्च करना इतने कम समय में संभव हो पाया है। महोदय, आपके द्वारा समय समय पर दिए गए सुझाव एवं मार्गदर्शन से हम लोगों को असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए आवश्यक उपायों को खोजने एवं इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेरणा मिलती रही है। महोदय, आज इस पोर्टल के शुभारंभ के साथ हमारे देश के असंगठित कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल का उद्घाटन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नए